Chartered accountants are no longer confined to ledgers and audits. They are at the forefront of a financial revolution. The world of investments is undergoing a powerful transformation, and at the heart of this change are chartered accountants. With great pride, the Institute of Chartered Accountants of India presents Investment Ki Pathshala, CA, the Investment Guru, a pioneering talk show celebrating the growing influence of CAs in capital markets. As Warren Buffett once said, the best investment you can make is in yourself. ICAI has long upheld this belief, nurturing professionals who blend technical excellence with ethical responsibility. Our members are not just accountants, they are analysts, strategists, and trusted advisors. This series positions the chartered accountants not just as financial experts, but as a holistic investment guide, a true guru for tomorrow's investors. Individual investors rising from 49 million in 2020 to 136 million in 2025 demonstrates the significant shift in the Indian capital markets. The capital markets in India are rising. In this scenario, Investment Ki Pathshala, CA, the Investment Guru, is a forward-looking initiative by the Institute of Chartered Accountants of India that brings to light the strategic role of chartered accountants in the investment ecosystem. This platform has been envisioned to motivate professionals, especially young chartered accountants, to explore the world of capital markets not just as participants but as a future-ready leaders. This initiative also seeks to underscore how the modern chartered accountant is more than an accountant. They are advisors, planners, strategists, and most importantly, professionals who guide others through the uncertainty with confidence. Investment Ki Pathshala demonstrates that chartered accountants possess this blend of expertise and trustworthiness, making them not just relevant but essential in India's investment journey. The Institute of Chartered Accountants of India continues to expand the horizons for its members through unique and impactful initiatives. And Investment Ki Pathshala, CA, the Investment Guru, stands as the testament to this vision. The show focuses on highlighting the natural fit of chartered accountants in the domain of capital market and investment advisory. The CA curriculum is not just technical in nature, it is strategically designed to equip professionals with practical skills and forward-looking mindset. Investment Ki Pathshala serves as a platform to encourage members to move beyond traditional roles and recognize their ability to shape the investment strategies, support clients in navigating volatility, and bring trust to financial system. Through this series, ICAI encourages its members to embrace their evolving roles as the investment guru of the future. In the constantly evolving world of finance, chartered accountants play an indispensable role. They are the unsung heroes who guide individual, businesses, and institutions through the complex and sometimes volatile terrain of investment. Their in-depth understanding of financial market, coupled with their technical expertise, position them as a trusted advisor in the investment decision-making. The Institute of Chartered Accountants of India, through the initiative Investment Ki Pathshala, CA, the Investment Guru, aims to bring to the forefront the critical role that CAs can play in capital markets. This innovative talk show serves as a platform for chartered accountants to step beyond their traditional role and embrace new opportunities within the investment landscape. Investment Ki Pathshala is designed to empower CAs to utilize their skill to their fullest potential and redefine their role in the capital market ecosystem. नमस्कार, इन्वेस्टमेंट्स पर इस खास सेशन में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देश का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर हम ICAI के साथ मिलकर इंदौर में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ CA कम्युनिटी मौजूद है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।
And I'm happy to welcome Anil Singhvi ji, Managing Editor, Z Business. धन्यवाद अनिल जी. थैंक यू सर. अब हम मौजूद हैं, जैसे आईसीएआई में सीए कम्युनिटी है, तो सीएस का रोल, भूमिका भी बदल रही है. एक समय में लोग कहते हैं सीए टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के तौर पे भी आ रहे हैं सामने, बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के तौर पे भी आ रहे हैं. ये जो बदलती भूमिका है, जो बदलता रोल है सीएस का, क्योंकि कुल मिलाकर जिंदगी जीने के, कारोबार करने के सब आयाम, डायनेमिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो सीएस का रोल भी चेंज हो रहा है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में. उस बदलती भूमिका को आप किस तरह से रीड करते हैं? देखिए, सीए के लिए सिंपल एक ही चीज है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. सीए कोई ऐसा काम है नहीं जो नहीं कर सकता. ये किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के मन में ये होना चाहिए कि मुझे करके दिखाना है या मुझे ये करना है. क्या होता है कि सीए क्या है, एग्जैक्टली क्या है? एक डिग्री है. इस डिग्री में क्या है? ये डिग्री आपको एक सर्टिफिकेशन देती है. सर्टिफिकेशन इस बात का नहीं देती कि आपको टैक्सेशन आता है या ऑडिटिंग आती है या लॉ आता है या अकाउंट्स आता है. इससे बड़ा एक सर्टिफिकेशन आपको ये देती है कि आपका एक सर्टेन आईक्यू लेवल है, आपका इंटेलिजेंस क्वोशेंट इतना है, राइट? सो पॉइंट ये है कि आपको ये डिग्री एक सर्टेन लेवल का सर्टिफिकेशन देती है कि आप में इतना दिमाग है. उसके बाद आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन और आपकी थॉट प्रोसेस ये तय करती है कि आप क्या कर सकते हैं. ये अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये तो बाएं हाथ का खेल है सीए के लिए. मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट वीकेंड फादर्स डे था, राइट? मैं एक प्ले देखने गया था मुंबई में, डैड्स गर्लफ्रेंड. मेरे मित्र हैं शैलेश लोढ़ा, ही इज द लीड कैरेक्टर इन दैट फिल्म. आई वाज सरप्राइज टू नो दैट वो प्ले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिखा, डायरेक्ट किया है. एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल प्ले. तो सीए लोग, मतलब अब मुझे बताओ, एक प्ले का राइटर या डायरेक्टर कैसे सीए हो सकता है? इसका क्या लेना देना अकाउंट्स फाइनेंस से? लेकिन वो टैलेंट है, उसका आईक्यू लेवल की. वो जिस फिल्म में, आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, शेखर कपूर साहब जिन्होंने मासूम फिल्म बनाई थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऐसे आपको 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे. सो मेरा पॉइंट सिंपल कहने का ये कि सीए के लिए क्या करना है, ये उस सीए को ही डिसाइड करना है. उसके लिए हर एक चीज ओपन है. ओके, तो सर, आप जो यंगर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी इस तरफ आ रही है, और जो एग्जिस्टिंग सीएस हैं, उनको भी कैसे बताएंगे? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल रही है, अब कई स्किल्स, जो हुनर हैं, वो रिलेवेंस उनकी कम हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो वो किस तरह से अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, वो कैसे इनोवेट करें, आगे बढ़ें, अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रखें. इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे बढ़ा जाए ताकि प्रासंगिक बने रहें, रेलेवेंट बने रहें और न्यूअर अपॉर्चुनिटीज के लिए बढ़ सके? तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूँ. ये सेकंड रो में लाल टी शर्ट वाले भाई साहब बैठे हैं. सर, एक मिनट जरा आप खड़े होइएगा प्लीज जी. श्याम जी नाम बताए ना? हाँ. ये 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. 50 साल हो गए से अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं. डॉक्टर को पूछ लो, आपकी उम्र का डॉक्टर मिलेगा, बोला प्रैक्टिस करता हूँ. आप कहीं अभिषेक मनु सिंघवी साहब को पूछ लो तो बोले प्रैक्टिस करता हूँ. क्यों? अब प्रैक्टिस ही करते रहेंगे, परफेक्ट कब होंगे भाई? इस उम्र में आके परफेक्ट. लेकिन यही चीज है, ये हमें डिफरेंशिएट करती है. हम जिस प्रोफेशन में हैं, हम कभी परफेक्ट नहीं मानते अपने आप को, क्योंकि हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने चीजें बदलती और बेहतर होती रहती है. सो अगर आप ये समझ लीजिए कि मैंने डिग्री ले ली, मैं परफेक्ट हो गया, मैं, ये शब्द ही वहीं से आया है कि आप यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. नई नई चीजें क्या आ रही है, क्या बदल रहा है, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से. सो यंगर जनरेशन को ये समझना चाहिए ये वर्ड प्रैक्टिस कहाँ से आया है. चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, जो बड़े बड़े प्रोफेशन है, रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है, दे आर ऑलवेज प्रैक्टिसिंग, दे आर नेवर परफेक्ट. तो इसलिए अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए में हमारी यात्रा प्रैक्टिस से शुरू हुई, अंत प्रैक्टिस तक होना है, तो फिर रुकना नहीं है. और सबसे बड़ी चीज है कि जो आमतौर पर मैंने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, एक कहना चाहिए कि थोड़ी सी माइंड ब्लॉक होती है टेक्नोलॉजी को लेकर. लेकिन जैसे आपने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके चेंज किया, टेक्नोलॉजी बिकम्स योर फ्रेंड. इट्स सिमिलर टू स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी सबसे बड़ा टास्क है हैंडल करना, और आपको वॉलेटिलिटी से ही डर लगता है यार, बहुत ऊपर नीचे होता है. एफडी की तरह नहीं कि बस धीरे 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 चल रहा है. लेकिन ये वॉलेटिलिटी जिस दिन आपको समझ में आ गई कि हाँ,
खराब मार्केट इसीलिए कि मुझे मेरे को पैसा लगाने का मौका दे रहा है, उस दिन आपको समझ में आएगा ये मेरा फ्रेंड है। सेम सिमिलरली टेक्नोलॉजी बीट एआई और एनीथिंग एल्स, आई एम श्योर इंस्टीट्यूट हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही है टेक्नोलॉजी के मामले में। और इतने सेमिनार्स में तो खुद एक्चुअली एज अ पार्टिसिपेंट जाना चाहता हूँ कई सारे प्रोग्राम में, मुझे टाइम अलाउ नहीं करता, लेकिन इतने बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं और दे गिव सच एन इंसाइट टू ऑल द टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, एआई। सो every young chartered accountant who is here, I would strongly recommend, make technology your friend. Don't feel that it's a hindrance or it's a big task or obstacle to whatever you have learned. That would go very, very long way for you. राइट। तो ये दौर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, और उसमें आपको भी उसके साथ कदम बढ़ाना है और आगे बढ़ना है और नई संभावनाएं तलाशनी है। तो आइए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जैसे देखें जो हाउस होल्ड सेविंग, अनिल जी, जो ट्रेंड्स जिस तरह से हैं, जो डीमैट अकाउंट्स का नंबर जिस तरह से बढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मार्केट्स में जो पूरा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है छोटे निवेशकों का, ये एक समय जो एफआईआईज मार्केट ड्राइव करते थे कि काउंटर बैलेंसिंग फोर्स की तरह खड़े हो गए हैं आकर, ये क्या दर्शा रहा है? और ये आगे आप इसमें किस तरह की और हलचल देखते हैं और कैसे इसका और दायरा और बढ़ सकता है? सर, मेरा ये मानना है कि अभी तो हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। जो हिंदुस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन का बूम आने वाला है, ये कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा बुल रन दुनिया में जो बना है, 45 साल की एक बड़ी तेजी हुई थी जापान में। और मैं बहुत स्ट्रांगली और हाई कन्विक्शन के साथ, यहाँ पर तो सारे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहन हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उस रिकॉर्ड को अगर कोई एक देश तोड़ेगा तो वो हमारा हिंदुस्तान है। सो मेरा पॉइंट है कि अगर हम कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी वाले काम ना करें एज अ कंट्री, कि कोई ऐसी बहुत ही खराब पॉलिसीज ना बना दें, कुछ आलतू फालतू चीज़ें ना कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता है कि हम करेंगे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और कभी कभी क्या होता है कि एक बार वो होता है ना कि गाड़ी जब आपकी चल पड़ती है, तो फिर है ना, वो आपका हाईवे परफेक्ट बना हुआ है, गाड़ी बहुत अच्छी है, फिर अगर ड्राइवर आपका कोई थोड़ा कम अच्छा है तो वो 80 की स्पीड से चलाएगा, ज़्यादा अच्छा है तो 100 की स्पीड से चलाएगा, लेकिन चलेगा हाईवे ही है, कार भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। सो 45-50 साल की हिस्ट्री में कभी 2-4-5 साल ऐसे होंगे जब आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाए। यू टर्न नहीं है ये ऐसा एक्सप्रेस वे, ऐसा हाईवे जिसमें यू टर्न बहुत जल्दी आता नहीं है। 100-200 किलोमीटर चलते रहो तब जाके कहीं यू टर्न मिलेगा आपको। सो यू टर्न होने वाला नहीं है। तो मेरा ये समझना है कि आपने जो कुछ अभी देखा है कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट बिगिनिंग। और इस बिगिनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, 3 प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई लीगल टसल हो गई, कुछ कर गया, तो आपको अपने लॉयर को, एडवोकेट को, सॉलिसिटर को सब चीज बतानी पड़ती है। ठीक है। दूसरा आपका डॉक्टर है कि भाई जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम हो तो बतानी ही पड़ेगी। तीसरा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपका वो फाइनेंशियल डॉक्टर है एक तरह से। तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हर एक चीज आप बताएंगे। सो जो ट्रस्ट फैक्टर है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो बहुत स्ट्रांग है। और आपको एक चीज, आई एम श्योर आप सब लोग काफी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आपको वो ट्रस्ट फैक्टर हमेशा बनाए रखना है अपने क्लाइंट के साथ में, राइट। सो मेरा ये मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट वाली एडवाइस एक नेचुरल एक्सटेंशन है, क्योंकि इसके साथ ट्रस्ट इश्यू जुड़ा है। अनिल जी, ये जैसे जो ट्रेंड्स अभी मौजूदा हम देख रहे हैं, जो इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, आप इन्वेस्टर्स की काफी हैंड होल्डिंग करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्लस साथ में ये जो हम देख रहे हैं डिजिटल बात कर रहे हैं, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, हमारी यंग ब्रिगेड है, और जो टियर 2 टियर 3 शहरों में जो एक एस्पिरेशन है, क्या ये सब कुल मिलाकर इसको ड्राइव कर रहा है? ऑफ कोर्स। और एक चीज बताऊं, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोगों को बताते हैं। एक जमाना था कि आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, अब बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको ये नहीं पता चलता किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ज्ञान कहीं से भी लें आप, लेना चाहिए। और ज्ञान कहाँ से लेना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। मैं कभी इस चीज के अगेंस्ट रहा ही नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स नहीं होने चाहिए, या इन्फ्लुएंसर्स क्या करते। सी, हम 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है। एक जी बिजनेस या एक अनिल सिंह तो हर आदमी तक नहीं पहुंचता। ये गलतफहमी हमें होनी भी नहीं चाहिए। हम 70-80% मार्केट शेयर लेने के बाद भी
कितने लोगों तक पहुंच जाएंगे? फाइनेंशियल एजुकेशन और इंक्लूजन की जरूरत है, और इसके लिए हमें हमारे जैसे 50 100 हजारों आदमी लगेंगे, तब जाके हम हिंदुस्तान के हर आदमी तक पहुंच सकते हैं। सो सबकी इंपॉर्टेंस है। आप एंड यूजर हैं, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इस इंफॉर्मेशन को मुझे किस पे ट्रस्ट करके लेना है। आप में से काफी लोग ऐसे सीए हैं जो सेल्फ स्टडी में पढ़े हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं कहीं कोचिंग क्लासेस की होगी। करेक्ट? किताबों में नॉलेज मिलती है अनडाउटेड, लेकिन जब आप कोचिंग क्लास में या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, जब आपके साथ प्रोफेसर होता है, तो प्रोफेसर जब नॉलेज के साथ अपना एक्सपीरियंस रखकर आपको जो पढ़ाता है उसे ज्ञान कहते हैं। नॉलेज और ज्ञान में बड़ा फर्क है। ज्ञान के साथ ज्ञान में एक्सपीरियंस आता है। सो मेरा ये मानना है, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहते हैं, आप ये सोचिए, नॉलेज उसके पास बहुत होगी, इंफॉर्मेशन बहुत होगी, प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया होगा, एक्सपीरियंस क्या है? मेरे को आप पूछोगे, मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा, जिस आदमी ने लाइफ में 2 बुल और बेयर मार्केट नहीं देखे, अच्छी खासी मंदी वाले, तब तक उसको फॉलो करने के पहले आप सोचिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको टफ टाइम में मिलता है, बस तेजी में सब ज्ञानी है, यहाँ पे सब फंड मैनेजर हैं, सब रिसर्च एनालिस्ट है, और मंदी में सब फिलोसोफर बन जाते हैं। राइट? बिल्कुल। सब बाबा जी है मंदी में, सबके पास ज्ञान है। वो ज्ञान मुझे मंदी में नहीं, तेजी में चाहिए। राइट? सो जिस आदमी ने 2 साइकिल स्टॉक मार्केट के ऊपर और नीचे के देखे हैं, उसको समझ में आता है कि तेजी में क्या सावधानी रखनी है और मंदी में क्यों नहीं डरना है। सो ये चीज आप फॉलो करिए, बट अदरवाइज इंफॉर्मेशन आजकल सब जगह अवेलेबल है। आपको जिससे अच्छी लगे, जैसी अच्छी लगे, एक चीज ध्यान में रखिए, किसी से भी लें, दिमाग आपका है, पैसा आपका है, और रिस्क भी आपकी है, और रिटर्न भी आपके है। सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि आप किससे ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, और आपको किस लेवल तक, किस एक्सटेंट तक उसको यूज करना है। जी, एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद फ्लोर ओपन करेंगे, फिर बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक थोड़ा लार्जर पिक्चर भी आप दे सकें। भारत की अर्थव्यवस्था अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, और उसके बीच में जब हम देख रहे हैं ग्लोबल उठापटक है, काफी अनिश्चितताएं हैं, काफी टेंशन्स हैं, तो ये आगे चलते हुए आपको अर्थव्यवस्था में किस तरह के मौके दिख रहे हैं और किस प्रकार की चुनौतियां भी दिख रही हैं इस ग्लोबल अनसर्टन एनवायरनमेंट में? किस किस को टेंशन है ईरान और इसराइल से? जरा हाथ खड़ा करें। या तो एक को भी नहीं है, किसी को नहीं है। किसी को नहीं है। शायद ये सवाल आप परसों पूछते, हम्म। जब निफ्टी 24,700 पे था तो टेंशन थी, कल 25,100 पे बंद हुआ है तो टेंशन खत्म हो गई। हमारे क्या है, हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे। तो सर, जैसे हम निवेश की बात कर रहे हैं, तो ये दौर है इंडस्ट्री 4.0 का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए काफी जोर दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र जीडीपी में 16-17% काफी टाइम से रहा, अब उसको काफी पुश करने की बात है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भागीदारी बढ़ाने की बात है। ये कौन से क्षेत्र आपको आगे चलते हुए ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जब हम और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे? सौरभ, मेरा ये मानना है कि इंडिया के मार्केट अभी हम 25,000 के आसपास हैं। राइट? लाइफ टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, 4% 5%। बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई पे ही है। इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे मार्केट में अगर कोई एक थीम पसंद है, तो वो है इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं, बहुत भर भर के पैसा बना के देंगे। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो पीछे स्टूडेंट्स जरा उनको समझना चाहिए। रेट कट का एक साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर इस लेवल पे आके रेट इंटरेस्ट रेट स्टॉप कर जाती है, उसके बाद बहुत लंबा समय तक स्टेबल रहती है, ना घटती ना बढ़ती। फिर यहाँ से वो फॉल होना शुरू होता है, इंटरेस्ट रेट फॉल करना शुरू करती है। ये वो पीरियड जब इंटरेस्ट रेट फॉल करती, यहाँ आके बॉटम बनता है। बॉटम बनने के बाद बहुत टाइम तक टाइम पास चलता है, कुछ नहीं, न बढ़ेगी न घटेगी, और फिर इस लेवल से वापस से बढ़ना शुरू होती है। अभी हम कहाँ से हैं? ये लेवल है, यहाँ से घटना शुरू, यहाँ तक आए हम। 1% हमारी इंटरेस्ट रेट ऊपर से घट चुकी है, शायद 1-1.5-2% और बेटर, यहाँ जाके बॉटम बनेगी। ये जो पीरियड है जहां से इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होती है, जहां से इंटरेस्ट रेट बॉटम पर रहती है, पहली हाइक के पहले जो पैसा बनता है आप सोच नहीं सकते, अमेजिंग। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनता है मैं बताता हूँ, वो बनता है मिड कैप शेयरों में। मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने निकाला है रिसर्च करके। मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करता है,
और आपको लाइफ में बड़ा पैसा बनाना है तो डोंट गो फॉर स्मॉल कैप, डोंट गो फॉर लार्ज कैप, मिड कैप्स आर द बेस्ट। क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज्यादा है, पता नहीं कौन सा स्मॉल कैप आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। लार्ज कैप्स लाइफ में अराइव हो चुके हैं तो उनमें स्कोप, मिड कैप्स होते हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है। अगर आपने 10 अच्छे मिड कैप चुने और उसमें से 3-4 भी आपके मल्टी बैगर हो गए और होंगे, क्योंकि आज की जो निफ्टी की कंपनियां किसी दिन मिड कैप थी, करेक्ट, किसी दिन स्मॉल कैप भी थी, लेकिन जब स्मॉल कैप थी तब विजन नहीं बनता, लेकिन मिड कैप बनने के बाद आपको एक विजन आने लगता है, ये कंपनी स्मॉल लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल रखती है। तो सबसे ज्यादा मिड कैप्स में पैसा बनता है, ये तो इन जनरल बता रहा हूं। अब सेक्टर्स का बताता हूं। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर टुडे इज एनबीएफसीज। एनबीएफसीज के लिए पूरा जो बेस्ट माहौल अभी चाहिए वो हो रहा है। एम्पल लिक्विडिटी, ओएमओज आरबीआई कर रहा है, इतनी लिक्विडिटी इस सिस्टम में जितना 5 साल में कभी पहले देखी नहीं, इतना पैसा बैंकिंग सिस्टम में। रेट कट हो गया आपके 1%, 3 मीटिंग में 1% रेट कट, एग्रेसिव। बीच में इनसिक्योर्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं थी, आरबीआई ने बहुत टाइट कर दिया, ग्रेजुअली आरबीआई अब धीमे धीमे छोड़ रहा है कि ठीक है। चौथी चीज, गोल्ड लोन वगैरह पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, अब धीमे धीमे ईज आउट हो रहे हैं। सो पूरे सेक्टर के लिए जो चेंज हो रहा है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी जाके मेहनत करिएगा। हर साल में, कैलेंडर ईयर की बात करो, हर कैलेंडर ईयर में आपको 2 से 3 एनबीएफसी ऐसी मिलेगी और एक साल में डबल होती है। 20 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, 20 साल का, हर साल आपको 2 से 3 एनबीएफसी डबल होते हुए दिखिए, स्टॉक प्राइस के लिहाज से बता रहा हूं। तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है एनबीएफसी में, मुझे लगता है मतलब कोई भी ऑन एन एवरेज ठीक ठाक काम करने वाली एनबीएफसी भी है ना, तो 2 से 3 साल में डबल हो जाएगी। वाह, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। कोई अच्छी है 1 साल में होगी, कोई कम अच्छी है 3 साल में होगी।